Okay, dear students, I am going to teach class 7 chemistry paper. In chemistry, in the previous class, we have read about the properties of acid and base, chemical properties of acid and base, and their uses. Okay, and salt. So let us know indicator. Okay, you have to read indicator. तो indicators क्या होता है? Indicators है क्या? Indicators का हिंदी मीनिंग होता है निर्देशांक. Okay, so indicators are those special substances which are used to identify the substance whether it is acidic or basic in nature by changing its color. Indicators are those special chemical substances which help us to identify whether a substance is acidic or basic in nature by changing color. When they are brought in contact with acidic or basic medium, then their color has been changed. So these substances are called indicators. As litmus paper, turmeric and China rose, phenolphthalein, methyl orange, so many indicators. Okay, so let us know the types of indicator. Indicator, there are two types of indicator. Indicator दो तरह का होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर, the indicator which are obtained from nature, like obtained from plants. Understanding? As litmus paper, a natural indicator. China rose, it is also natural indicator. Red cabbage and turmeric. Okay, all these are natural indicators. They are obtained from plants. Litmus paper is obtained from lichen plant. एक lichen plant होता है, उससे उसके leaf से तैयार किया जाता है lichen से. So it is also natural. And second type of indicator is synthetic. Synthetic indicator क्या है? वो man-made indicator है, मानव निर्मित. Okay, the indicator which are prepared in laboratory by using chemicals, they are called synthetic indicators. As methyl orange and phenolphthalein. Okay, they are available in laboratory. Okay, when the offline classes will run, I will show you indicators like methyl orange, phenolphthalein and litmus paper. Okay, in this way there are two type of indicators, natural indicator and synthetic indicator. So natural indicator obtained naturally like plants जैसे lichen, China rose, red cabbage, turmeric, ये सब natural indicator. Understanding? And synthetic indicator, man-made indicator. The indicators which are prepared in the laboratory by using some chemicals, they are called artificial या synthetic indicator. As methyl orange, phenolphthalein, ये सब artificial है या synthetic इसे भी कर सकते हैं. Okay, so let us know some example of this indicator. जैसे indicator है litmus, methyl orange, phenolphthalein. कैसे ये कलर चेंज करता है? तो कलर इन एसिडिक मीडियम एंड कलर इन बेसिक मीडियम. ओके, तो इंडिकेटर्स ऐसे लिटमस हुआ. तो लिटमस व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिडिक मीडियम, यदि वो एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है. ओके, अंडरस्टैंडिंग? तो रेड लिटमस टर्न्स ओके ब्लू इन एसिडिक मीडियम. ओके, द ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड. अंडरस्टैंडिंग? जो ब्लू है वो रेड हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग? और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है? वो ब्लू हो जाता है. अंडरस्टैंडिंग? रेड चेंजेस इनटू ब्लू. अंडरस्टैंडिंग? इन दिस वे द लिटमस पेपर आर यूज्ड. जैसे ये आपका ब्लू कलर का है, ये लिटमस पेपर ब्लू. अंडरस्टैंडिंग? तो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, तो यह लिटमस पेपर लाइसिन प्लांट से बनता है. ओके, तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. When the
litmus paper is brought in contact with acidic medium, then this blue litmus paper changes into red. ये red हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इन बेसिक मीडियम जो रेड कलर का है लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू, अंडरस्टैंडिंग। तो एसिडिक में ब्लू चेंजेस इनटू रेड और बेसिक मीडियम में हो जाता है रेड चेंजेस इनटू ब्लू। तो बाय चेंजिंग कलर द इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अब मिथाइल ऑरेंज है, लेट अस सी मिथाइल ऑरेंज इज अनदर इंडिकेटर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इन एसिडिक मीडियम, कलर इन एसिडिक मीडियम ये क्या है, शार्प ऑरेंज हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग, ये शार्प ऑरेंज है, ओके। और इन बेसिक मीडियम में ये येलो हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस बाय चेंजिंग इट्स कलर, ओके। और फिनोल्फथलीन, तो फिनोल्फथलीन कैसे यूज किया जाता है, व्हेन द मीडियम इज एसिडिक, यदि वो मीडियम एसिडिक है सबस्टेंस, तो इट बिकम्स कलरलेस, ये कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में व्हेन द फिनोल्फथलीन इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बेसिक मीडियम, देन इट बिकम्स पिंक, ये पिंक कलर का हो जाता है फिनोल्फथलीन। इन दिस वे द इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सबस्टेंस, either that is acidic or basic in nature, okay। so they are special substance, वे special chemical substance है which are used to identify the nature of acid or base, okay। acidic और basic nature को ये identify करता है by changing color, okay। when they are brought in contact with them, their color has been changed, okay। in this way the indicators are used। so there are two type of indicator, we have read about this, okay। Now let us we know the use of neutralization reaction हम बताए थे salt के केस में, कि when acid and base react, okay, to each other they form salt and water, तो this is neutralization reaction। तो neutralization reaction का use कहाँ होता है, everyday life, use of neutralization reaction in everyday life as insect bite जो करता है, जैसे कीड़े मकोड़े काटते हैं, इंसेक्ट स्टिंग, जैसे बिच्छू डंक मारता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो यह रिकवर्ड कैसे होता है, तो जाइरोकम या फिर वो बेसिक इन नेचर का जो सॉल्यूशन है, मेडिसिन है, वो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जो इंसेक्ट स्टिंग जो होता है उसका बाइट वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड और बेस रिएक्शंस करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसका यूज दैनिक जीवन में है, इंसेक्ट स्टिंग में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। और क्या है, एसिडिटी, ओके। इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, यदि किसी को अनपच हो जाता है, ओवर ईटिंग खा लेता है ज्यादा, तो अनपच होने पे एसिडिटी बढ़ जाती है। स्टोमक में आप जानते हो कि देयर इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक, ओके, डाइजेस्टिव जूस के रूप। तो अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीजेस इन आवर, ओके, स्टोमक, सो दैट इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी, दैट इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। So in case of this hyperacidity, so how it can be cured? So it can be cured by taking antacid as a medicine। उसमें हम antacid मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में लेते हैं दवा, जैसे आप खाते हो डाइजिन, ओके, इनो पीते हैं, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एसिडिक मीडियम है, एसिड और बेस रिएक्शंस करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये एसिडिटी को क्योर करता है एंटासिड के रूप में, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड के रूप में काम आता है। और इसका यूज क्या है, प्रिवेंटिंग फूड डीके, टूथ डीके, ओके, टूथ डीके, जैसे दांत सड़ने लगता है, तो उस स्थिति में आप ब्रश का यूज करते हैं, जो दैट इज बेसिक इन नेचर। जैसे आपका टूथ के ऊपर आप खाना खाने से क्या होता है कि एसिड फॉर्म हो जाता है, ओके, दैट जर्म्स लेयर, स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज फॉर्म ऑन योर टीथ, ओके। तो इट कैन बी क्योर्ड बाय ब्रशिंग, ओके। तो पेस्ट जो आपका यूज करते हो आप, जैसे टूथपेस्ट के रूप में, है ना, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये सब बहुत तरह का पेस्ट अवेलेबल है, रेड लाल दंत मंजन है, तो ये सब बेसिक इन नेचर है। तो एसिडिक मीडियम जो फॉर्म हुआ दांत के ऊपर, दैट कैन बी न्यूट्रलाइज
बाय यूजिंग बेस। तो बेस के रूप में पेस्ट जो होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक और बेस रिएक्शंस करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो क्यूर्ड हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है। ओके, दांत दर्द करता है, टूथ डीके, वो सब ठीक हो जाता है। और इसका यूज कहाँ है? ट्रीटिंग सॉइल। यदि सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाता है बाय यूजिंग एक्सेसिव fertilizer, chemicals, okay, so the soil become acidic, so it can be also neutralized by treating ammonium sulfate या organic matter। ये सब जमीन की, अर्थ की एसिडिटी को भी इससे दूर किया जाता है। सॉइल की उर्वरा शक्ति जब घट जाती है, ओके, डैमेज कर जाता है, तो इसको रिकवर करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का यूज किया जाता है। इन दिस वे the use of neutralization reaction in everyday life. In this way, okay, acid, base and salt has been needed। एक और होता है इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ओके, लेट अस नो अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, ओके, डियर स्टूडेंट्स, indicators you know, this time described about indicators। अब ये है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो इट इज आल्सो used to identify the nature of acid or base। okay, the solution is acidic or basic in nature, it can be also identified by universal indicator। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डाई। ओके, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डाइज कलर दैट शोज ए चेंज ऑफ कलर ओवर ए रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। ओके, यह पीएच रेंज पे निर्भर करता है, पीएच वैल्यू पे। तो दे आर अवेलेबल इन अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। वो पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर के रूप में अवेलेबल होता है लैबोरेटरी में। एंड द चेंज इन कलर कैन बी मैच्ड विद द स्टैंडर्ड कलर। वो स्टैंडर्ड कलर से उसका मैचिंग किया जाता है। द कलर कैन बी मैच्ड। ओके, द चेंज इन कलर कैन बी मैच्ड विद अ स्टैंडर्ड कलर टू फाइंड द पीएच। इट इज शोन इन द फिगर। देखिए, जैसे आपका एसिडिक मीडियम जो होता है लेस देन 7 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक मीडियम इज लेस देन 7 और पीएच वैल्यू ऑफ बेस होता है मोर देन 7 और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। ओके, ये पीएच स्केल है, उसी पे आधारित है। तो इफ द पीएच वैल्यू इज 1 तो उसका कलर हो जाता है रेड। ठीक है, यदि पीएच 3 है तो पिंक हो जाएगा, उसका कलर चेंजिंग करता है पीएच वैल्यू के आधार पे। 5 है पीएच वैल्यू तो येलो हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। एंड 7 है दैट इज ग्रीन, अंडरस्टैंडिंग, वो न्यूट्रल है। ओके, तो 7 जिसका पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल है। तो इन दिस कलर, ओके, द यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर, ए स्पेशल, अंडरस्टैंडिंग। एंड 9 है जिसका पीएच वैल्यू आप समझ जाओ ओवर 7 है जो दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो ब्लू हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इन दिस वे द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर यूज्ड। इंडिगो पीएच वैल्यू 11 है तो उसका इंडिगो हो जाता है कलर। पीएच वैल्यू 13 है तो वायलेट हो जाता है। इन दिस वे द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर यूज्ड। ओके, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डाइज that shows a change of color over a range of pH value and they are available in a strip of paper। पेपर के strip of paper के रूप में अवेलेबल होता है and in color can be matched with a standard color। ये सब स्टैंडर्ड कलर है और इससे मैच किया जाता है कलर उसका, और मैचिंग करने पर वो अपने आप पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेस। ओके, मैच विद स्टैंडर्ड कलर ऑफ to find the pH and it is shown in the figure। This is your universal indicator। Universal indicator pH value of neutral solution का 7 होता है, understanding। If the solution is neutral, its pH value 7, तो इसमें इसका ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन शो कर रहा है कि वो न्यूट्रल है, अंडरस्टैंडिंग। और ब्लू है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर, pH value 9 शो है, तो 9 क्या है? मोर देन 7 है, तो मोर देन 7 अल्कलाइन नहीं होते। ओके,
up to 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So they are alkaline. Understanding? और लेस देन 7 है वो एसिडिक मीडियम है, एसिडिटी, और जो न्यूट्रल है वो 7 है. In this way the universal indicator are used. Now acid, base and salt has been ended. Okay, you would have if you are not able to understand, then play the video, replay the video and see again and again for better understanding. Okay, in this way acid, base and salt has been finished. In the next class we shall read other paper, that is physics. Okay, फिर physics हम लोग next class में पढ़ेंगे. Okay, today I end the class. That's all. Thank you.